یارک میں روزویلٹ ہوٹل مستقل بند کرنے کا اعلان. PIA کی ملکیت ہوٹل کورونا کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار. 31 اکتوبر سے دروازے بند کر رہے ہیں انتظامیہ. بند کرنے کا اعلان چند گھنٹے بعد ویب سائٹ سے غائب. کورونا مزید 8 افراد کی جان لے گیا. 24 گھنٹے کے دوران 661 نئے مریض. مہلک وائرس سے 3,17,595 شہری متاثر. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,335 رہ گئی. پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اس میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے, اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے. اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابعدار. PDM عوام کو موجودہ حکمرانوں سے نجات دلائے گی. ووٹ کو عزت دو, نواز شریف کا بیانیہ. پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اسی نعرے میں پوشیدہ. قربانی دینے کا وقت آیا تو کارکن انہیں اپنی صفوں میں پائیں گے. مریم نواز. 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. جب نقطۂ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا, اس موومنٹ کا, تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کون سینٹ کے الیکشن کراتا ہے. خواجہ آصف کا نواز شریف کی کال پر استعفے دینے کا اعلان. دیکھتے ہیں پھر سینٹ کے الیکشن کون کراتا ہے. پنجاب کی پارلیمانی پارٹی بھی سیٹیں چھوڑ دے گی. خواجہ آصف, شاہدہ خان عباسی کی لیگی کارکنوں سے باہر نکلنے کی اپیل. استعفے دینے کے لیے مارچ کے مہینے کا انتظار کیوں؟ اپوزیشن جلدی مستعفی ہو تاکہ خالی سیٹوں پر نئے الیکشن کرائیں. مریم صاحبہ نیک کام میں دیر کیوں کر رہی ہیں؟ شہباز گل کا رد عمل. PDM کے جلسوں کے اعلان کے بعد حکومت بھی ایکٹیو. تحریک انصاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کل عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. شمالی پنجاب کے نو منتخب ہزاروں ارکان حلف اٹھائیں گے. موجودہ حکمران عوام دشمن. ماضی کی حکومتوں پر الزام تراشی کے سوا ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں. اب عوام نہیں, عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہو چکا. پیپلز پارٹی نے PDM کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا. بلاول بھٹو. یہ رپورٹیں میں نہیں دیتی. ایک بورڈ بنایا گیا تھا جس کے اندر 12 بندے شامل تھے. ایک بندے پہ نہیں چھوڑا گیا. 14 دنوں کے بعد ان کی اگر پلیٹلیٹس نہ سٹیبلائز ہوتے تو انہوں نے ہمارے پاس ہی رہنا تھا. 9 مہینے میں تو علاج نہیں کروایا تو اس کا مطلب ہے ان کی کنڈیشن بہت حد تک سٹیبلائز ہے, ان کو واپس تشریف لے آنا. نواز شریف کو کئی بیماریوں کا سامنا. اسپتال آئے تو پلیٹلیٹس کم تھے. سروسز اسپتال میں 14 روز کے علاج کے بعد حالت بہتر ہو گئی. نون لیگی قائد نے لندن جا کر کوئی رپورٹس نہیں بھجوائیں. یاسمین راشد کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. اپوزیشن استعفے دے دے, حکومت ختم ہو جائے گی. ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس, مکمل ڈرامہ. اپوزیشن حکومت گرانے, حکومت اقتدار بچانے میں لگی ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی امید ختم کر دو. مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو. آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اور جنرل آسٹن کی ملاقات. افغان امن عمل آگے بڑھانے میں مدد پر اظہار تشکر. مذاکرات کی کامیابی کے لیے تشدد کے واقعات میں کمی پر اتفاق. امریکی حکام کے دورے کا اعلامیہ بھی جاری. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں مریم ذیشان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیو یارک میں PIA کی ملکیت روزویلٹ ہوٹل بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کے باعث 31 اکتوبر سے ہوٹل بند کر رہے ہیں.
कोरोना वबा के बायस मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना, न्यूयॉर्क में PI की मिल्कियत रूजवेल्ट होटल बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि माशी सूरत हाल की वजह से फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर से होटल को बंद कर दिया जाए। इंतजामिया ने होटल बंद करने का ऐलान चंद घंटे बाद वेबसाइट से हटा लिया। PIA ने 90 की दहाई में होटल रूजवेल्ट $3 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। अमेरिकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर बनाए गए होटल का इफ्तिताह 23 सितंबर 1924 को हुआ। इस वक्त होटल की मालियत $1 बिलियन के करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से भी होटल की खरीदारी की पेशकश की खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी रहीं। होटल को जॉइंट वेंचर में चलाने का जायजा लेने के लिए एक कंसल्टेंट की खिदमत भी हासिल की गई थीं। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में छुपा है। PDM आवाम को मौजूदा हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। लाहौर में पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो कारकुन उन्हें अपनी सफों में खड़ा पाएंगे। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है। इसमें फिर एक ही चीज़ देखी जाती है और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियाँ साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर पहुंच चुका है। कि आज ये भी आवाज़ें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑपोजिशन की PDM के जवाब में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार। दिफाई हिकमत अमली की बजाय PTI का फ्रंट फुट पर जारहाना स्टॉक लगाने का फैसला सामने आया। मुल्क भर में जलसों का ऐलान। कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो होगा। शिमाली पंजाब के नौमुंतखब हजारों अरकान हल्फ उठाएंगे। ऑपोजिशन की PTMA के जवाब में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। आपको बताएं कि दिफाई हिकमत अमली की बजाय PTI ने फ्रंट फुट पर जारहाना स्टॉक लगाने का फैसला किया है। मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया गया है और कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो होगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। ये कहना है उस्मान बुज़दार का। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद का कौमी मफादात पर गालिबाना अफसोसनाक है। एहतसाब हमारा कौमी मिशन है जिससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उस्मान बुज़दार की जानिब से बयान सामने आया है। उनका कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू के दौरान ये सामने आया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात लियाकत अंसारी से जान लेते हैं। लियाकत, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। लियाकत अंसारी से इस मुलाकात से मुतालिक मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू सामने आई है। उनका कहना है कि ज़ाती मफाद का कौमी मफादात पर गालिबाना अफसोसनाक है। एहतसाब हमारा कौमी मिशन है जिससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इस मुलाकात का अहवाल लियाकत अंसारी से जान लेते हैं। लियाकत, बताएगा इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था? आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में अरकान पंजाब असम्बली ख्याल अहमद खासरो, उमर फारूक, शहबाज अहमद, नज़ीर अहमद चौहान और मलक तैमूर ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एहतजाजी सियासत करने वाले अपने दौर में की गई करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती मुफाद का कौमी मुफाद पर गालिबाना इंतहाई अफसोसनाक है और आज मनफी सियासत करने वालों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को फरामोश किए रखा। पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन किस
मकसद के लिए इकट्ठी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एहतसाब हमारा कौमी मिशन है, इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। चेयरमैन बीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ड्रामा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत गिराने लेकिन हुकूमत इक़्तिदार बचाने में लगी है। किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी उम्मीद खत्म कर दो। अगर किसी कौम को तबाह करना हो अंदर से तो उसकी उम्मीद ख़त्म कर दो। इस वक्त इस पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पूरी कौम मायूस है। क्यों मायूस है? ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, हुकूमत लगी हुई है इक़्तिदार बचाने में। ओपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वो 8 वज़रा फिर जो है वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो टोटल पाकिस्तान में ये ड्रामा हो रहा है, कुछ फिक्र नहीं है। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। अगर आप सब लोग ओपोजिशन वाले वाकई अपनी कॉज से मुखलिस हैं कि आपको इस हुकूमत को हटाना है, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस्तीफ़ा दो, सारे इस्तीफे दे दो, हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? फैसलाबाद से खबर देंगे आपको, जहां थाना सदर जड़ावाला के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में थाना सदर जड़ावाला के इलाके से 6 मुसल्लह डाकू शहरी के घर से गन पॉइंट पर नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीनकर फरार हो रहे थे कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान होने वाली फायरिंग के नतीजे में तमाम डाकू शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो 3 डाकू रास्ते में ही दम तोड़ गए।